गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अ पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 6। गुड मॉर्निंग। टुडे माय टॉपिक नेम इज द शेफर्ड ट्रेजर्स। In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. He understood people's sorrow and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. Many people came to him for advice. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. The king of that country heard about him and thought of meeting him. ईरान के जो एक गांव में एक गडरिया रहता था जो कि बहुत ही गरीब था। उसके पास रहने के लिए झोंपड़ी तक नहीं थी। वह कभी स्कूल भी नहीं गया था और उसे लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, क्योंकि उन दिनों स्कूल बहुत कम हुआ करते थे। गरीब और अनपढ़ होने के बावजूद भी वह शेफर्ड बॉय जो था वो काफ़ी बुद्धिमान था। वह लोगों के दुखों और परेशानियों को समझता था और अपनी मतलब उनकी समस्याओं को बड़े साहस और बुद्धि से निपटाने में उनकी मदद करता था। अनेक लोग उसकी पास सलाह लेने आते थे और कुछ ही समय में वह उनके अपनी बुद्धिमत्ता से तथा मैत्रीपूर्ण स्वभाव के लिए वह उनके बीच में काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। देश के राजा ने भी उसके बारे में सुना और उनसे उसने मिलने का विचार किया। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. As soon as the shepherd saw the traveler coming toward the cave, he rose to welcome him. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own made meal. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. जो वो गदरिये मतलब राजा जो थे वो भी एक गदरिया का भेष बनाकर एक खच्चर पर सवार होकर राजा जो थे उस गदरिये की गुफा के पास गए जहाँ पर वो रहता था। तो जो शेफर्ड बॉय था उसने देखा कि एक यात्री उनकी गुफा की तरफ आ रहा है, तो उसने उनका स्वागत करने के लिए वह खड़ा हो गया और उसने उस यात्री को गुफा के अंदर बुला लिया और उसे पीने को पानी दिया। उसने रूखा सूखा थोड़ा अपना भोजन में से उसको हिस्सा भी दिया। राजा ने रात में वहीं विश्राम किया। तो वह गदरिये के अतिथि सत्कार और बुद्धिमत्ता के वार्तालाप से वह राजा जो थे वो काफ़ी प्रभावित हो गए। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, your majesty, for paying me the compliment of a visit." The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise. He thought to himself, "I need people like him to work for me." And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. जबकि वह अभी भी थका हुआ था, मतलब जो राजा जो थे वो थके हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मॉर्निंग में जाने का अपना निश्चय कर लिया। वह बोले कि एक गरीब यात्री के प्रति तुम्हारे मतलब कि जो तुमने मेरे पर दयालुता दिखाई है उसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे काफ़ी दूर जाना है तो मुझे जाने की अनुमति दे दो। अपने जो मेहमान बनकर राजा आए हुए थे और शेफर्ड बॉय ने उनकी आंखों में आंखें डालकर बोले, धन्यवाद महाराज, आपने यहाँ आकर मुझे इतना सम्मान दिया। तो राजा हैरान हुए और बड़े प्रसन्न भी हुए कि वह व्यक्ति तो सचमुच बहुत बुद्धिमान है, मुझे ऐसे ही कर्मचारियों की ज़रूरत है। और राजा ने उसे गदरिये को जो था अपने एक छोटे से ज़िले का गवर्नर नियुक्त कर दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said, "He is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. Why did he always carry with him?" They added, "an iron chest. Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected." After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better.
यद्यपि जो मतलब कि वह सत्ता और पद की गरिमा उसने पा ली थी, लेकिन वह जो गदरिया था वो फिर भी पहले की तरह ही बना रहा। उसे उन्होंने गवर्नर तो बना दिया, लेकिन जो गदरिया था वो उसने अपना व्यवहार चेंज नहीं किया। लोग उसे अभी भी प्यार तथा सम्मान करते थे, और क्योंकि वह बुद्धिमान था, सहानुभूति वाला लड़का था और अच्छे स्वभाव का था, वह सभी के प्रति बड़े सहृदय और न्याय करता था। उसकी जो प्रसिद्धि थी वो एक काफ़ी न्यायप्रिय तथा बुद्धिमान गवर्नर के रूप में सारे देश में फैल गई। अन्य स्टेट्स के गवर्नर जो थे वो उससे अत्यधिक मतलब एक होता है ना, उनसे ईर्ष्या करने लगे तथा राजा से उसकी शिकायत करने लगे। वह बोले वह बहुत बेईमान है तथा लोगों से वसूल किए गए टैक्स का एक भाग अपने पास रख लेता है। वह अपने साथ सदा एक लोहे की पेटी क्यों लिए रहता है। वे बोले शायद इसी में उसका खजाना है जिसे उसने चोरी से इकट्ठा किया होगा। आखिरकार वे उसका मजाक उड़ाते हुए बोले गरीब शेफर्ड बॉय जो है, इससे पहले उसने बेहतर आचरण की, इससे ज़्यादा उससे और किसी चीज़ की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? One thing was certain, the king discovered. The new governor did carry an iron chest with him all the time. So one day, the new governor was summoned to the palace. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back. Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?" शुरू में तो राजा ने किसी भी लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर वह भला कितने दिनों तक इन कहानियों को नज़रअंदाज कर सकता था। तो एक बात तो निश्चित ही राजा ने पता लगा लिया। उन्होंने नया गवर्नर सदैव अपने साथ जो है एक लोहे की पेटी लेकर जो चलता है, तो उसने सोचा कि ये ऐसे क्यों करता है। तो एक दिन राजा ने नए गवर्नर को महल में बुला लिया। गवर्नर जो था उसने अपने ऊँट पर सवार होकर वह आया, और हर व्यक्ति यह देखकर खुश हुआ कि उसने अपनी पीठ पीछे ऊँट की पीठ पर वही अपनी लोहे की पेटी को कसकर बांध रखा है। अब तो राजा के क्रोध की सीमा ना रही। वह गरजा बोला, तुम हमेशा अपने साथ ये लोहे की पेटी क्यों लिए रहते हो? इसमें भला है क्या? The governor smiled. He asked his servant to bring in the chest. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. But how great was their astonishment, and even of the king himself, when the chest was opened. No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. Holding it up proudly, the shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me." गवर्नर जो था वो मुस्कुरा दिया। उसने नौकर को बोला कि वो जो पेटी है उसे ले आओ, और उसने बड़ी उत्सुकता से आसपास खड़े जो भी लोग थे वो उस शेफर्ड बॉय की चोरी पकड़े जाने की प्रतीक्षा करते रहे। पर उनके हैरानी की सीमा ना रही जब राजा स्वयं भी हैरान रह गया। जब उन्होंने पेटी खोल के देखी तो उन्हें उसमें ना कोई सोना था, ना चांदी थी, ना जवाहरात थे। उसमें से क्या निकला? एक पुराना कंबल निकला जिसे वो हमेशा गदरिया अपने साथ लेकर चलता था। उसने कहा, महाराज, इसमें यही मेरा एकमात्र खजाना है। मैं इसे हमेशा अपने साथ लिए रहता हूँ। तो राजा जो बोलते, बट वाई डू यू कैरी सच अ ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड, टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clocks. How pleased the king was, and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of a much bigger district that very day. पर जो था मतलब उन्होंने कहा कि राजा ने उससे पूछा, पर तुम ऐसे साधारण कंबल को अपने साथ लेकर क्यों चलते हो? निश्चय ही तुम एक प्रांत अब एक स्टेट के गवर्नर हो। तो राजा ने ये चीज़ उससे पूछी। तो उस पर जो शेफर्ड बॉय था उसने बड़े आराम से उत्तर दिया कि ये कंबल मेरा सबसे पुराना दोस्त है, ये मेरी हर समय रक्षा करेगा। जब महाराज आप मुझसे मेरी शाही पोशाक उतरवा लेंगे। राजा इस उत्तर सुनकर उसका बड़े खुश हुए, और जितने भी चालू गवर्नर जो थे वो उस बुद्धिमान व्यक्ति का उत्तर सुनकर लज्जित हो गए। अब उन्हें पता चला कि जो शेफर्ड बॉय था वास्तव में वो देश का सबसे प्रिय और विनम्र और एक बुद्धिमान व्यक्ति है। राजा ने उसी दिन शेफर्ड बॉय को एक बहुत बड़े स्टेट का गवर्नर बना दिया।
Thank you. Have a nice day. Please like, share and subscribe it.